Hello everyone, welcome back. So in the last lecture we started the height and distance. Okay. Now in this lecture we will have more questions based on the angle of elevation. Okay. First of all, let us take a quick revision what we studied in the last lecture. Okay. You remember we started the discussion with the measuring of height of Eiffel Tower. Okay. So let me revise what we studied in the last lecture. See, we started with this Eiffel Tower. Okay, a boy wants to measure the height of the Eiffel Tower. Okay, and what he is doing, he is observing the top of the Eiffel Tower from his eye. Okay, and this denotes the height of the tower. This denotes the distance of the Eiffel Tower. Okay, as you can see, height and distance. Clear. Now for measuring the height, what he is doing actually, the line connecting eye of this observer to the object. Object is what? The top of this Eiffel Tower. Okay, so this line is known as line of sight. Okay, now we have seen the angle between this line of sight and the horizontal level. That means this angle. Okay, we termed this angle as alpha, angle of elevation. Okay, this was my angle of elevation. Remember? Okay, similarly, when the observer is at top and the object is below the object, okay, then the angle of depression is made. Okay, so this is angle of depression. Okay, this is angle of depression because the observer is in depression, so the angle made is the angle of depression. So let me denote this with beta. Beta is angle of depression. Okay, so we studied these basics from of this chapter, height and distance. Now students, we solved some questions. Question number 1, 2, 3, 4 are already done. Now we will start with question number 5. So yes, read it carefully. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. There is a building, there is a tower. Okay, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. Okay, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the, if the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक टावर है और एक बिल्डिंग है. ओके, टावर की हाइट दे रखी है. अब आप ऐसे समझ लो, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हैं. ओके, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से दे रखा है और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से दे रखा है. अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग. कॉमन सेंस क्या कहता है? व्हाट शुड बी ऑफ मोर हाइट, टावर एंड बिल्डिंग? ओके, कॉमन सेंस सेज टावर शुड बी मोर हाई. ओके, सो let me start with drawing a tower. Okay, let me start with the tower. Suppose this denotes the height of tower, which is given to me what, 50 meter. So let me denote this as AB. Okay, so let us say this AB is 50 meter and this is the height of my tower. Okay, see students, एक बार अगर डायग्राम बन गया ना तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है. बट डायग्राम बनाते टाइम आपको केयरफुली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन है उसको सही डायग्राम के अंदर चेंज करना है. चलिए देखिए, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज गिवन टू मी व्हाट, 50 मीटर. नाउ you can see that angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 degree. So this angle is 60 degree. Okay, and this point C is going to be foot of the building. So let me draw the building also. Okay, now this is suppose building. Now height of building is to be find, so let me take the top of the building as point D and suppose the height of the building, which is the my required quantity, is going to be h in meters. Okay, I assumed CD which is the height of the building, h meter. Now students, we are also given the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. So here in this way, here we got the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. Now my diagram is completed. Okay, एक बार डायग्राम बन गया तो उसके बाद कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली. इसके बाद आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है. दो ट्राइंगल से
आपको दो ट्रायंगल्स की हेल्प लेते हुए आपको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी दो ट्रायंगल्स हैं। ओके, दोनों में देखा जाए तो दो अननोन है, एक एसी अननोन है और एक एच अननोन है। तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, हम दो इक्वेशन से एक को एलिमिनेट करके एक की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना लिया। अब फिगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शो कर देते हैं। ओके, in my figure AB denotes what? Height of tower. So AB denotes height of tower, which is 50 meter actually. Okay, so 50 meter, let me write here 50 meter. Now CD denotes what? CD denotes the height of building. Okay, so height of building, and which is to be find. Now I have already assumed it h in meters. Okay, now AC is what? AC is actually distance between the shortest distance, horizontal distance between the tower and building. Okay, so AC is the unknown quantity, and let us denote it. Let me write it: distance between tower and building. ये अपन ने डिनोट कर दिया कि हमारे फिगर में क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, what we have to do, actually we have to eliminate AC and we have to find CD. See how we can do this. In triangle ABC, you can observe the value of tan 60. The value of tan 60, if I calculate, see, perpendicular upon base. Okay, so tan 60, if you observe in triangle ABC, it's going to be what? Perpendicular is going to be AB and the base is going to be what? AC. Now the value of tan 60 you know very well. Okay, root 3. AB is given to me, which is 50 meter, and AC here is unknown. Okay, so here I have calculated AC. From here I have calculated AC, and AC is going to be 50 by root 3 meters. Okay, let me write it equation number 1. Okay, now students, we have one more triangle. Okay, in triangle ACD, can you calculate tan 30? See, tan 30 is going to be CD upon AC. If I use the value of tan 30 as 1 by root 3, CD is H, and AC, let it be AC ones. Okay, so it's going to be what? It's going to be AC is equal to H root 3, again in meters. Okay, and that's my equation number 2. Now students, you can see here in equation number 1 and in equation number 2, the left hand side is AC. Okay, so because left hand side it is AC, the right hand side must equal. Okay, so let me equate 1 and 2 so that AC will get eliminated. Equating 1 and 2, equation 1 and equation 2. See, in equation number we are given AC as 50 by root 3, and in equation number 2 we have AC as H root 3. Now students, after cross multiplying, root 3 will multiply with H root 3. See, root 3 will become 3, and it will be 3 times H, and it's going to be what? 50, because in the denominator of H root 3 you can assume 1. Okay, so here we calculated the required height of the building, which is 50 by 3 meter, and if you solve it, you will get 16.66 meters. 16 and 2 by 3. Okay, corrected up to 2 places of decimal, the answer is 16.66 meter. I guess clear. Okay, it's a very simple one. Now students, आपको लग गया होगा कि एक बार डायग्राम बना लिया तो फिर हमको बस कैलकुलेशन करनी है. Let us take more question. Now question number 6. A 1.5 मीटर टॉल बॉय. देखो, अब यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट भी आ गई, तो हमको ऑब्जर्वर की हाइट को नेग्लिजिबल नहीं मानना है, ऑब्जर्वर की हाइट को भी डायग्राम में इंक्लूड करना है. ओके, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक
बिल्डिंग है 30 मीटर उसकी हाइट है, ओके, मतलब बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है, ओके। नाउ एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट दे रखी 1.5 मीटर, जो कि बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग भी ग्राउंड पर होगी और जो ऑब्जर्वर है वो भी ग्राउंड पर खड़ा होगा, ओके। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, students, let me draw the horizontal level. See, this is my horizontal level. Okay, now an observer is there, okay, which is standing at some distance from a 30 meter tall building. So let me assume this is my observer, okay. So you don't need to draw this animation in your exam, okay. This is only for your understanding. See, this actually denotes the height of the observer, okay. This height denotes the, and it is given to me 1.5 meter, okay. So this is my observer and the height of my observer is 1.5 meter. इसको मैं ऐसे डिनोट करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो मेरा ऑब्जर्वर है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ओके। नाउ ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग को देख रहा है, कहां से, और ये जो बिल्डिंग है ये 30 मीटर टॉल है। तो लेट मी फर्स्ट टेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज ए बी, ओके, एंड हाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वर एज सी डी, okay. CD denotes the height of observer which is 1.5 meter and the height of building is given to me 30 meter. Now students, हो क्या रहा है, ये ऑब्जर्वर मतलब ये लड़का यहाँ से बिल्डिंग की तरफ मूव करता है और अभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो ये पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना दें। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए मुझे एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा इसकी आई से पास होता हुआ, तो मैंने इसकी आई से मतलब इसकी हाइट के टॉप से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया, ओके। और यहाँ पर ये बन गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना, 30 डिग्री। अब होगा क्या, ये जैसे जैसे लड़का आगे चलेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बढ़ जाएगा, किसका, सेम पॉइंट ए का, बिल्डिंग के टॉप का, ओके। सो अब ये लड़का यहाँ आ गया, ये लड़का वहां रुका नहीं, थोड़ा सा आगे आ गया, और जब ये लड़का आगे आ गया तो इसकी जो आई का एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में 60 डिग्री। बोलो डायग्राम समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा, अब लड़का यहाँ से यहाँ आया तो उसकी हाइट तो चेंज हो नहीं गई, हाइट तो अभी भी 1.5 मीटर रहेगी, है ना। तो लेट मी डिनोट दिस, लेट मी से दिस पॉइंट इज सी डैश एंड दिस पॉइंट इज d dash, okay. CD is equal to C dash D dash, which is 1.5 meter, denoting what, height of the this. See, let me show here. CD is equal to C dash D dash is equal to height of observer, height of observer. This is only for your understanding, okay. और अगर आप ऐसा एग्जाम में डिनोट करते हो तो इससे आपके मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, मतलब आप लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे कि हमने क्या ऑब्जर्व करा है, तो आप इसी तरीके से कंप्लीट करें। CD इज इक्वल टू C dash D dash डिनोट्स द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर व्हिच इज माय 1.5 मीटर, ओके। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर और हाइट ऑफ बॉय, क्लियर, एक ही बात है। चलिए, नाउ you just need to understand here, let me denote this point with E, let me denote this point with point E, okay. Now students, CD, C dash D dash and B they all are equal, okay, क्योंकि अगर मैं इस लड़के को आगे भी मूव कराता तो इसकी यहाँ ये हाइट, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होने वाली है ना, ओके। CD, C dash D dash और BE, तो मैं कह सकता हूँ कि ये BE भी कितनी होगी, ओके, ये BE भी 1.5 मीटर होगी। अच्छा, अगर BE 1.5 मीटर होगी, सो नाउ यू हैव टू टेल मी दैट अगर BE 1.5 मीटर होगी तो AE कितनी होगी। अगर BE 1.5, अच्छा मैं यहां पर ऐसा करता हूं, BE भी लिख देता हूं, C, एक बार इसको वापस लिखते हैं, जो CD है वही C dash D dash है, ओके, और वही BE है, ठीक है। CD जो है वो भी 1.5 मीटर, ये सारी पैरेलल लाइन ही तो है, और इसके BC के परपेंडिकुलर भी है सारी लाइन, ओके। सो लेट मी राइट हियर CD इज इक्वल टू C dash D dash इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 1.5 मीटर,
ब्रैकेट में लिख देते हैं हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय। बोलो क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई वांट टू कैलकुलेट एई, अगर मैं यहाँ से एई कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एई मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। एई कैसे कैलकुलेट होगी? अरे पूरी एबी में से आप बीई को माइनस कर दो। पूरी एबी लेंथ, पूरी एबी हाइट में से अगर आप बीई को माइनस करोगे तो एई बच जाएगी। सो लेट मी फर्स्ट राइट एई। एई इज गोइंग टू बी द हाइट एबी minus the height BE. Okay, now AB is what? AB is 30 meter. Okay, and BE is 1.5 meter. Now subtracting, I would get 30 minus 1.5. 30 minus 1.5 is going to be what? 28.5 meter. Okay, so AE is the 28.5 meter. Now students, I would need AD. Okay. See, now students, you can observe we have the two triangles. One is triangle AED dash and next is the complete triangle AED. Okay, now we will have two equations and what we actually want to find the distance he walked towards the building. आप ही बताओ कितनी डिस्टेंस उसने मूव करी है। ओके, क्या ये डिस्टेंस मूव करी है CC डैश या DD डैश, एक ही बात है। तो लेट मी डिनोट दिस डिस्टेंस विथ x। ओके, एंड दिस इज माय वेरिएबल हियर जो कि मुझे निकालना है। दिस इज माय अननोन क्वांटिटी एक्चुअली। ओके, सी सी डैश सी डैश, सपोज दिस इज x एंड दिस डिनोट्स द डिस्टेंस ही मूव्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो लेट मी डिनोट हियर आल्सो सी डैश इज इक्वल टू डी डैश से x मीटर। ओके, डिस्टेंस he moved, actually I should say required distance he moved, distance he moved towards building, towards building, जितनी भी उसने डिस्टेंस मूव करी है बिल्डिंग की तरफ वो है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर एक क्वेश्चन आता है तो पूरा 4 नंबर में आता है, ठीक है, 4 नंबर में या कभी 3 नंबर में भी आ सकता है, बट आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे हैं। चलिए, नाउ लेट मी सॉल्व दिस। First of all, let us take the triangle AED, AED dash. Okay, in triangle AED dash. Okay, if you calculate tan 60, what you will get? If you take tan 60, you will get, it's going to be AE upon D dash E. AE upon ED dash लिख देते हैं इसको, AE upon ED dash. Okay, now students, tan 60 is what? Tan 60 is your root 3. Okay, AE we have already calculated. AE is 28.5 upon ED dash. ED dash. Okay, अगर आपको ये D के ऊपर डैश लगाने में मतलब ऐसा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है या आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसको अलग पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे CD के D डैश C डैश की जगह आप EF यूज कर लो, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से ED डैश की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से ED डैश की वैल्यू कितनी आ गई? क्या इसकी जरूरत है कि ED डैश की? नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ED डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो आ गई 28.5 अपॉन रूट 3 एंड लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया एक बार को, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी? वो इक्वेशन बनेगी मेरे ट्राइंगल AED से, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसको रब कर दूंगा। आप यहाँ पर पहले इसका सॉल्यूशन देखें, पुराने वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन पर ना जाए, पुराने वाले का ही सॉल्यूशन देखें। देखिए, हमने ट्राइंगल AED डैश से ED डैश की वैल्यू निकाल ली। नाउ वी हैव वन मोर ट्राइंगल AED। सो लेट मी टेक ट्राइंगल AED। इन ट्राइंगल AED, नाउ इन ट्राइंगल AED इफ आई कैलकुलेट tan 30, okay, tan 30. Okay, in triangle AED, what is going to be the value of tan 30? Tan 30 is going to be 1 by root 3. Okay, now in this triangle, if I observe tan 30 is going to be
AE upon ED. It's going to be AE upon ED. Now I know tan 30 is nothing but 1 by root 3 and AE is 28.5. Now observe ED. ED can be written as ED dash plus DD dash. बोलो ED dash plus D dash D, एक ही बात है. Okay, so let me break this ED is with this ED dash plus D dash D. What I did, I break just this ED. Okay, in ED dash this length you can observe. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको y भी एज्यूम कर सकते हैं. ED डैश को बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी तरफ से वेरिएबल और भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये तो रही ED डैश और इसके आगे क्या है D डैश D. तो इन दोनों का सम ही तो है ये. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मेरा अननोन है वो x आता है पिक्चर में और यहीं से मैं उसकी वैल्यू निकाल दूंगा. देखना कैसे. ED डैश plus D dash D and D dash D is my unknown quantity, that is x. Okay, now students, solving this, what would I get? Solving this, I would get, see, after cross multiplying I would get ED dash plus x is going to be 28.5 times root 3. बोलो कोई confusion? ठीक है. अगर मैं यहाँ से ED dash की वैल्यू निकालूं, ED डैश की वैल्यू, तो वो कितनी आने वाली है? वो आने वाली है 28.5 रूट 3 माइनस एक्स. इस प्लस एक्स को अपन ने इधर ट्रांसपोज कर दिया एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, आप ही बताएं, ये बात अब मुझे आप ही बताएं, क्या ED डैश मुझे चाहिए था? मुझे ED डैश नहीं चाहिए था ना, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा. और ED डैश को एलिमिनेट करने के लिए मैंने दोनों इक्वेशन से ED डैश को निकाल लिया है. ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं. एक्चुअली मैं ED डैश की वैल्यू को इक्वेट करूंगा. आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ED डैश की वैल्यू थी 28.5 बाय रूट 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ED डैश की वैल्यू ये आई है. तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कैन आई से this 28.5 upon root 3 is going to be 28.5 root 3 minus x, and now my x can be calculated from here. Now this minus x when goes here it will become positive. Okay, so it is 28.5 root 3 and this 28.5 root 3 when goes in the right hand side it will become 28.5 by root 3. Now students, easily I can calculate here. See, if root 3 gets multiplied, it will become 28.5 root 3 after multiplying will become 3. Okay, and it's a minus 28.5. So let me solve here. See, if you multiply 28.5, see, it is 28.5 times 3 माइनस 28.5. दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 टाइम्स 28.5 में से आप 1 टाइम माइनस कर रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा कि 2 टाइम बच जाएगा. ठीक है ना. तो हाँ, 28.5 का डबल ही आंसर होने वाला है न्यूमरेटर में. तो 28.5 का डबल तो मुझे पता ही है 57 होता है. आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना. ये मैंने इस तरीके से करा है कि 3 टाइम्स 28.5 में से 1 टाइम माइनस करना है, तो 2 टाइम बचा ना. 2 टाइम्स 28.5 को आप लिख दो 57. कहाँ प्रॉब्लम है? ठीक है. नाउ x आ गया 57 बाय रूट 3. हमको x की वैल्यू चाहिए तो रैशनलाइजेशन बनता है. ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर तो छोड़ ही नहीं सकते. हमको 9th क्लास में यही तो पढ़ाया गया था. तो लेट मी मल्टीप्लाई इट विथ रूट 3 एंड डिवाइड विथ द सेम रूट 3. सो इट्स टाइम टू गेट माय आंसर. माय आंसर इज गोइंग टू बी सी, यहाँ लिखेंगे अपन आंसर 57 रूट 3 upon root 3 और by cancelling with 3 it will become 19 root 3 meter, and this is my required distance the boy moved towards the building. Clear? So hence we solved one more question. Okay, see, I guess it's clear. Now students, you please note it down because we will have to solve this question number 7. Okay, now let me erase this all and we will see the question number 7 now. See, question number 7 is the angles of the elevation. This is the most important question. Okay,
इसको मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी बारंबार मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, the angles of the elevation from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in the same straight line with it are complementary, find the height of the tower। क्या है, एक टावर है, ठीक है, तो बना ले टावर, ये टावर बन गया, ठीक है, ये मैंने टावर बना लिया, ये टावर है, और इस टावर के फुट से, इस टावर के फुट से दो पॉइंट लिए, एक तो 4 मीटर डिस्टेंस पर और एक 9 मीटर डिस्टेंस पर। और इन दोनों पॉइंट्स की खास बात क्या है, इन दोनों पॉइंट्स से जो टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो द सम शुड बी 90 डिग्री। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, this AB denotes the height of the tower, okay, which is the unknown quantity here, okay। Here see, this is let us say this is point C, okay, and this point C is at 9 meter distance from the base of the tower, that is point A, okay। point A से 9 मीटर डिस्टेंस पर मैंने ले रखा है point C, okay, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब 4 मीटर डिस्टेंस पर मुझे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, और मान लिया ये पॉइंट मैंने ले लिया D। अच्छा, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, लेट मी मेंशन हियर 4 मीटर, ओके। नाउ वी आर गिवन द एंगल्स टू द point C and D are actually complementary. Now when the two angles are complementary, that means the sum should be 90 degree. Now suppose one angle is theta. If one angle is theta, the other angle is going to be what? 90 minus theta. क्लियर। देखो मैं वापस समझाता हूँ, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम 90 डिग्री है। अब मान लिया ये जो एंगल C है, एंगल C की वैल्यू है थीटा, तो एक दिन इधर देखना, एंगल C की वैल्यू मैंने थीटा मान ली। आप ही बताओ क्या एंगल C प्लस एंगल D 90 डिग्री है? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 डिग्री है। एंगल C को अगर मैंने थीटा मान लिया तो यहां से एंगल D क्या निकलेगा, यहां से एंगल D जो है खुशी खुशी 90 माइनस थीटा बन जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्या मैं एंगल D की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? ठीक है, इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, समझ जाते हैं वैसे तो यूजुअली कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री और एक की वैल्यू आपने थीटा एज्यूम करी है तो दूसरे की वैल्यू 90 माइनस थीटा ही होने वाली है, ठीक है। सी दिस एंगल D इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। क्या दो इक्वेशन, क्या दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको? ठीक है, so first of all let us write AB is the height of tower. AB denotes the height of tower, and let us say H, okay। Now in meters, see you can observe here in triangle ABC, in triangle ABC if you calculate tan theta, what is going to be the value of tan theta? It's going to be AB upon AC, no problem। Now tan theta, if you calculate tan theta, AB you assumed as H, okay, and AC is given to me 9 meter, okay। So from here I have got a equation. The equation says tan theta is equal to H by 9, and let me write it equation number 1. Now the other equation I will get from the triangle ABD. Now similarly in triangle ABD, if you calculate tan of 90 minus theta, if you calculate tan of 90 minus theta, you will get it is going to be AB upon AD, okay, perpendicular upon base, okay। Now tan 90 minus theta, tan 90 minus theta, cot theta, complementary angles, okay। So let me write tan 90 minus theta as cot theta, AB was H and AD is 4, okay। Now students, here I have got cot theta is equal to H by 4,
अब आप अपना दिमाग चलाएं और ये सोचें कि वी हैव tan theta, we have cot theta in terms of h, and we wanted to find h. That means I have to eliminate the angle theta. How can we eliminate theta? Okay, what was the value of tan theta into cot theta? 1, because they are reciprocal of each other. Either you can replace cot theta as 1 upon tan theta and you can use the value of tan theta from equation number 1, or you can just multiply the two equations and you will get the theta eliminated. Okay, so let me multiply equation number 1 and equation number 2. Multiply equation 1 and equation 2. See, as I multiply the two equations, I will get tan theta into cot theta. And see, this is my left hand side, and in right hand side I have to multiply h by 9 with h by 4. Now students, tan theta into cot theta हमने पढ़ लिया ट्रिगोनोमेट्री में, ये होता है 1. h into h बनेगा h स्क्वायर 9, एक मिनट, बड़ा गंदा h स्क्वायर बना है. सी, tan theta into cot theta, h into h बन गया h स्क्वायर, 9 4s are 36. Now after cross multiplying I will get h square as 36, and h is going to be plus minus root 36. Now students, common sense says the height of the triangle, height of the tower cannot be negative, so I will write plus 6 meter. Okay, एक बार शो कर देते हैं, plus minus 6. Now since height cannot be negative, since देखो ऐसे लिखते हैं, since h cannot be negative, since h cannot be negative, so I will write the height of the tower is 6 meter. बोलो, समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था. एक ट्रायंगल से tan थीटा निकाला, दूसरे ट्रायंगल से tan 90 माइनस थीटा निकाला, मतलब cot थीटा निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 बन गया और हमारा अननोन निकल गया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है, अब मान लो 9 की जगह a आ जाए, 9 की जगह क्या आ जाए? a आ जाए. मान लो इस 9 की जगह क्वेश्चन में a आ जाए और इस 4 की जगह मान लो b आ जाए, तो आप बता सकते हो हाइट कितनी आने वाली है? मैं बताता हूँ आपको. हाइट एक्चुअली आने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. आप देख लो लास्ट में हो क्या रहा है, एच स्क्वायर इक्वल आ रहा है 36 के, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल हो रहा है, आ रहा है 9 इंटू 4 के. आप देख लो इस इक्वेशन में एच स्क्वायर जो है वो 9 इंटू 4 के इक्वल ही तो आ रहा है, जिसको हमने 36 लिखा है. तो एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल आएगा तो हाइट रूट ए बी ही तो बनेगी. आप इसको याद कर लो कंपटीशन के लिए, ठीक है ना. जब भी ऐसा केस बनता है, एक टावर होता है जिसकी हाइट एच है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, तो जो डिस्टेंसेस होगी पॉइंट्स की, उनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट होगा, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट मतलब प्रोडक्ट मतलब ए बी और स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, वही टावर की हाइट होगी. बोलो, क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, सी दिस क्वेश्चन. Two poles of equal heights are standing opposite to each other. Now there are two poles. Okay, in this way we have two poles. Okay, and they are of equal height. Okay, and they are standing opposite to each other on either side of the road. मतलब एक रोड है, रोड के इस तरफ एक पोल है और दूसरी तरफ एक पोल है, यानी कि जो इन पोल के बीच की डिस्टेंस है, जो इनके पोल के बीच की डिस्टेंस है, वही रोड की विड्थ है. बोलो, क्लियर? चलिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. मतलब दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस मिल गई 80 मीटर. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में, रोड के बीच में एक पॉइंट है. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. चलिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं. ये मेरा एक पोल और ये मेरा दूसरा पोल. ठीक है, दोनों पोल बना लिए, दोनों की हाइट इस बार मुझे सेम लेनी है तो ले लेते हैं सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मान लो पॉइंट ए बी है, इसको ए डैश बी डैश ले लो या सी डी ले लेते हैं. चलो सी डी. ये इक्वल है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे रखा है टू पोल्स इक्वल हाइट्स. ओके, सो ए बी की हाइट भी एच है तो सी डी की भी हाइट क्या हो जाएगी? एच ही हो जाएगी. ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड.
नाउ वाइड मतलब ये डिस्टेंस BD, तो BD की डिस्टेंस आपको 80 मीटर दे रखी है, तो लेट मी डिनोट BD एज 80 मीटर। BT जो कि विड्थ ऑफ द रोड है, या आप यूं कह दो कि पोल्स के फुट के बीच की डिस्टेंस है, या पोल के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी है? 80 मीटर। क्लियर? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में एक पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं पोल्स के टॉप के, एक तो है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। तो ये मेरा पॉइंट है, मान लो E। इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया मैंने 60 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा वाला 30 डिग्री हो जाएगा अपने आप ही, ये 30 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें मेजरमेंट पर मत जाना एंगल के। हाँ, वैसे कॉमन सेंस ये कहता है कि 60 डिग्री का एंगल थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, तो मैंने हल्का सा बड़ा रखा भी है 60 डिग्री को। ठीक है, बाकी ई, जैसा जैसे मैं इस ई पॉइंट को इधर शिफ्ट करता जाऊंगा, कहां पर? इधर राइट हैंड साइड में, वैसे वैसे क्या होगा, ये एंगल ई जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री जैसा बन जाएगा। हालांकि उसका आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो फिगर है, और फिगर केवल किस लिए है? इक्वेशंस बनाने के लिए। ठीक है, तो फिगर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारी मतलब फिगर के अंदर ये जो आपने मेजरमेंट लिया है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको बस आपने इंफॉर्मेशन सही पुट करी है, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये मेरे को 30 डिग्री जैसा लग नहीं रहा, 30 डिग्री तो थोड़ा सा और मतलब है ना थोड़ा और नीचे होना चाहिए, ठीक है, या 60 डिग्री यहाँ से थोड़ा सा और इंक्लाइंड होना चाहिए, वो ऐसा कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, ये परफेक्ट फिगर है। परफेक्ट फिगर क्यों? क्योंकि फिगर हम किस लिए यूज कर रहे हैं? हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आई गेस क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, क्या निकालना है हमको? हाइट ऑफ पोल्स निकालनी है। अच्छा, हाइट ऑफ पोल्स मतलब h निकालनी है। हालांकि हम यहाँ से BE और DE भी निकाल सकते हैं, मतलब ये जो पॉइंट E है, जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसकी दोनों पोल के फुट से डिस्टेंसेस भी पूछी जा सकती है। हालांकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है शायद उसमें डिस्टेंसेस भी पूछी है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है वो डिस्टेंसेस भी पूछी है, तो हम सब निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं इसको बहुत शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कंप्लीट कैलकुलेशन आपको ही करनी है। ये x है, ये y है, ये x y क्यों क्यों मान लिए? मान लो ये x और y भी निकालने होते हैं, मान लो। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ y लिखने से बेटर है मैं 80 माइनस एक्स लिख दूं यहाँ पर, क्योंकि आप इतना तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे हो, तो मैं इसको एक ही वेरिएबल में रखता हूँ। मैं इसे DE की जगह 80 माइनस एक्स लिख देता हूँ। आप देखो, जो कंप्लीट BD है, जो कंप्लीट BD है वो कितनी है? 80 है। अब BD में से अगर मैं BE को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? अगर मैं BD में से DE को माइनस कर दूंगा, मतलब 80 में से x को माइनस कर दूंगा, तो DE बच जाएगा ना। तो बस मैंने इसको 80 माइनस एक्स मान लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पूरी BD 80 थी, उसमें से BE वाला पार्ट x था, तो बचा हुआ पार्ट तो 80 माइनस एक्स होना ही है। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, h और x की वैल्यू बताते हैं। ठीक है, अब आप ये डिनोटेशन वगैरह आप लिखते जाना कि AB क्या डिनोट कर रहा है, CD क्या डिनोट कर रहा है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, फटाफट देखें, tan 30 किसके इक्वल होने वाला है? h अपॉन BE, BE मतलब x, यानी कि tan 30 होने वाला है 1 अपॉन रूट 3 के, 1 अपॉन रूट 3 होता है h अपॉन x के इक्वल। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला, x इज इक्वल टू h रूट 3, एंड लेट मी राइट इट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, दूसरा जो है वो मिलेगा मुझे इन ट्राइंगल CDE से। इन ट्राइंगल CDE इफ आई ऑब्जर्व, सी tan 60, the tan 60 is going to be what? CD upon DE, CD है h और DE है 80 माइनस x। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको h निकालना था ना, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लूं? आप इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो देखो tan 60 आ गया रूट 3, h अपनी जगह है, 80 माइनस x की वैल्यू मैंने यहाँ यूज कर ली h रूट 3। ना क्या यहाँ से मैं h नहीं निकाल सकता? बहुत ही सिंपल सा काम है h निकालना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इक्वल हो जाएगा किसके? यहाँ रूट 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। ठीक है, h इक्वल हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 80 माइनस h रूट 3। नाउ लेट मी सॉल्व इट। 80 टाइम्स रूट 3 माइनस रूट 3 3h। ओके, ये माइनस इधर जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, तो h प्लस h 3h बनेगा 4h। 4h इज इक्वल टू 80 रूट 3। मैंने क्या करा, इस माइनस 3h को उठा के इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। ओके, ताकि h में ऐड होके 4h बन जाए। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 4, या मैं इसको लिख सकता हूँ 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर जो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ पोल है वो कितनी है? 20 रूट 3।
कोई बोले डिस्टेंस भी बताओ, पॉइंट ई की टावर के मतलब पोल के फीट से आप डिस्टेंस बताओ, तो बताओ डिस्टेंस x कितनी आ जाएगी, x अगर मुझे x भी निकालनी होती है, हालांकि पूछी नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बट पूछी जा सकती है, तो कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू है 20√3। ओके, तो इन इक्वेशन नंबर 1, ओके 20√3 इंटू √3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना, आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। x कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी √3 3 एंड 20 इंटू 3 60 मीटर, यानी कि x यानी कि बी कितनी है 60 मीटर, तो बीई 60 मीटर है, तो बची डीई कितनी हो गई 20 मीटर। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर सेम ही क्वेश्चन है, बस बीई और ईडी भी निकालनी है, ठीक है, तो मैंने निकाल दिए। ओके, ये क्वेश्चन अब आप अपने खुद जब आप करें तो प्रॉपर वे में एक एक चीज, जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में कर रहा था, ठीक है, एक एक चीज मेंशन करते हुए इसको कंप्लीट करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मैं समझा देता हूं है क्या पेडेस्टल, ठीक है, प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, स्टैच्यू रखा हुआ है। अब जैसे आपने देखा ही होगा ना, गांधी जी को खड़ा करना है तो गांधी जी को जमीन पे तो नहीं, पहले उनके लिए एक पेडेस्टल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर गांधी जी का स्टैच्यू खड़ा होता है, ठीक है ना। कहीं भी अगर आप देखो, किसी भी, नॉट गांधी जी, कहीं किसी का भी अगर स्टैच्यू है तो पहले एक ग्राउंड से एक अपन स्टेज बनाते हैं पेडेस्टल, ठीक है, उसके ऊपर स्टैच्यू लगता है, ठीक है। चलिए, तो हमको दे रखा है कि एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू रखा हुआ है, तो देखो डायग्राम बनाते हैं, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा क्या है पेडेस्टल, ठीक है। लेट मी डिनोट this A, this as B, this as B, क्लियर। अच्छा, ये तो पेडेस्टल हो गया, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ओके, नाउ इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, ये स्टैचू आ गया, ठीक है, तो BC है स्टैचू। अच्छा, स्टैचू की हाइट मुझे दे रखी है 1.6 मीटर, तो लेट मी डिनोट हेयर ओनली दिस BC इज नथिंग बट 1.6 मीटर, बोलो क्लियर। ओके, ए बी क्या है, ए बी मेरी अननोन क्वांटिटी है यहाँ पर। ओके, ए बी कितनी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल है, तो ये क्योंकि अननोन है तो लेट मी डिनोट इट विथ स्मॉल h। ओके, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ओके, एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पर है, मान लो यही पॉइंट है अपना, पॉइंट ओ बना लें, इसको कुछ भी बना सकते हैं अपन, है ना। अच्छा, इस पॉइंट ओ से टॉप ऑफ स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, तो ये बन गया देखो 60 डिग्री, टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट ओ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल बोल लो या फुट ऑफ स्टैचू बोलो, एक ही बात है। ओके, का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको 45 डिग्री, ये लो, ये एंगल मिल गया मुझे 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको h निकालनी है। ओके, फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार डायग्राम बन गया ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी इज इक्वल टू h मीटर, ओके, डिनोट्स व्हाट, हाइट ऑफ पेडेस्टल which is to be find, height of pedestal, okay, and this is only my unknown quantity। Okay, so you can observe the two triangle, first of all triangle AOB, okay, in triangle AOB if you check the value of tan 45 degrees, so tan 45 degree is going to be AB upon AO, okay, tan 45 is 1, AB is h, AO is AO, okay, आप चाहो तो AO को x मान सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, वो वेरिएबल को इंक्लूड करना चाहे तो। AO आ गई h, ठीक है, मीटर, AO आ गई h मीटर, एंड लेट अस से इट्स इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ आप यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लास्ट में यूनिट लिख दें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह यूनिट लिखते चले, लास्ट में आप एक बार लिख दें, ऊपर लिख दें कि ए बी जो है वो अपन ने हाइट इन मीटर से ज्यूम कर रखा है, ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपको बार बार यूनिट मेंशन करने की। चलिए, एओ आ चुकी है। अच्छा, वैसे भी कॉमन सेंस से जब भी एंगल 45 डिग्री बनता है तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, तो अगर ए बी एच है तो एओ को तो एच होना ही था, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एओसी, माय सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल एओसी ना, इन ट्राइंगल एओसी, in triangle AOC the angle of elevation is tan 60 degree and tan 60 is going to be what, tan 60 is going to be AC upon AO।
नाउ द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, AC इज नथिंग बट AB प्लस BC। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 1.6 प्लस एच? बोलो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर 1.6 प्लस एच डायरेक्ट यूज कर दूं? क्यों भाई? क्योंकि AC है क्या? AC AB और BC का सम ही तो है। AC AB में आप BC को ऐड करोगे तो क्या आएगा? AC आ जाएगा। अब BC 1.6 है और AB H है तो 1.6 प्लस H लिख दिया। अच्छा AO तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से H निकाल चुका हूं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज भी कर लिया यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स आई गेस कुछ बचा नहीं सॉल्व करने के लिए, सिंपल कैलकुलेशन है और वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ आगे तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। इस h को यहाँ शिफ्ट करते हैं क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है तो उसको एक तरफ तो रखना ही पड़ेगा ना। तो ये बन गया √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। टेकिंग h कॉमन इट इज √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 और द वैल्यू ऑफ h इज गोइंग टू बी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन बनता है? बिल्कुल बनता है साहब। तो ये बन गया √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। ओके, हमने इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से ही इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने ऐसा करा तो कैसा हुआ? तो ऐसा हुआ कि 1.6 इंटू √3 प्लस 1 एंड a माइनस बी, a प्लस बी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन आई राइट डायरेक्टली √3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 1 इज 2। आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर, ओके, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन हमने पहले भी बहुत सॉल्व करी है। तो h आ गई 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। I wanted the height of the pedestal. So my required answer is 0.8 times √3 plus 1. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 10. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. आप ग्राउंड पे खड़े होके ग्राउंड के किसी पॉइंट से अच्छा, अब आपकी हाइट यहाँ पर नेग्लिजिबल है, ओके ठीक है। आप एरोप्लेन बहुत हाइट पे होगा और आप बहुत कम हाइट के हैं, अगर आप कंपेयर करें तो उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है ना, और ग्राउंड से मान लो इस हाइट पर, ठीक है, जो एक एरोप्लेन उड़ रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। ओके, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है। आप ध्यान रखना इसके अंदर एज्यूम आपको ये करना पड़ेगा कि जो एरोप्लेन है वो कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लैंड नहीं कर रहा, ठीक है, यूं इस तरीके से मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट हाइट। ओके, अच्छा इसमें लिखा भी होगा, आगे देखें आप। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। ओके, आप अपनी जगह पे खड़े, क्योंकि एरोप्लेन आगे मूव कर गया तो आपकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज हो गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 √3 मीटर, ये 3000 √3 मीटर लिखा हुआ है, ओके, √3 वो सिंबल है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, आपको एरोप्लेन की स्पीड बतानी है। अच्छा, स्पीड देख के घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आपको टाइम दे रखा है ना, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, जब आपके पास टाइम है तो अगर आप डिस्टेंस निकाल लो, कौन सी डिस्टेंस? horizontal distance which is moved by, which is traveled by this aeroplane in 30 seconds। तो अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास टाइम है तो क्या आप स्पीड नहीं बता सकते? वेरी सिंपल ना। चलिए कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो मान लो ये पॉइंट जो है ये है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर खड़े होकर आप देख रहे हैं, ठीक है, और जो अपना एरोप्लेन है वो इस हाइट P पर उड़ रहा है, ठीक है। तो जब आपने O से P पर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? एंगल ऑफ एलिवेशन बना यहाँ पर 60 डिग्री। बोलो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब एरोप्लेन यहाँ से सीधा उड़ रहा है, सीधा उड़ रहा है मतलब यूं हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, आपसे दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में मान लो 30 सेकेंड्स बाद एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Q। आप देखो इसमें लिखा भी आगे, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ओके, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर क्या बन गया? यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन केवल 30 डिग्री रह गया, ये एंगल केवल 30 डिग्री रह गया। क्या एरोप्लेन की हाइट चेंज हुई? मतलब एरोप्लेन की हाइट का मतलब है
ग्राउंड से जिस हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है क्या वो हाइट चेंज हुई? नहीं, तो ये हाइट चेंज नहीं हुई. लेट मी डिनोट दिस पॉइंट एज आर एंड दिस पॉइंट एज एस. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये पी आर है वो क्यू एस के इक्वल है और ये है हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ग्राउंड, और ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 3000√3 मीटर. ओके, 3000√3 मीटर. ओके, 3√3 किलोमीटर. चलिए, QS भी 3000√3 है और मेरी PR भी 3000√3 है. ठीक है. अच्छा, PQ क्या है? PQ है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द aeroplane in 30 seconds. Okay, so let me denote this also. PQ is equal to RS is equal to distance covered by my aeroplane in 30 seconds. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, आपको स्पीड निकालनी है. स्पीड्स तो बाद में निकाल लेंगे, हमको बस PQ निकालनी है. जिस दिन हमने PQ और RS निकाल ली उस दिन हम उसको 30 सेकंड से डिवाइड करके उसकी स्पीड भी बता देंगे. ठीक है. तो लेट मी डिनोट इट विथ x. आप चाहे तो x एज्यूम करें, ना चाहे तो इसको PQ और RS ही रहने दें, बट मैं यहाँ पर x एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है. चलिए, ये हो गई x मीटर PQ, तो ये RS भी हो गई मेरी x मीटर. नो कंफ्यूजन एट ऑल. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस OR की भी जरूरत पड़ेगी तो सही, तो क्यों ना इसको भी एक वेरिएबल एज्यूम कर ही लें. लो, आज इसको भी वेरिएबल ले लेते हैं y. ये हमारी इच्छा है, हम एज्यूम कर सकते हैं ना. OR इज इक्वल टू y मीटर. ओके, आई जस्ट एज्यूम दिस. नाउ स्टूडेंट्स, टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. इन ट्राइंगल, you can observe in triangle OPR. First, in triangle OPR, if I calculate the value of tan 60, so the value of tan 60 is going to be what? The tan 60 is going to be PR upon OR. Bolo. Now, tan 60 is √3, PR is 3000√3, and OR is y. So here I can write √3 times y is equal to 3000√3. Okay. Now I can cancel this √3 and √3. Okay, if I want I can cancel it. So let me cancel out it. So its y is going to be 3000 meter. Okay. Now by triangle OQS. Okay, the next triangle is triangle OQS. Okay, so in triangle OQS, now in triangle OQS, if I see tan 30, what is going to the the value of tan 30? 1 by √3. Okay, and it's nothing but QS by OS. Okay, now students, tan 30 is 1 by √3. QS is same, that is 3000√3, and OS is nothing but y plus x. Can I write directly now? OR plus RS, OR y, RS जो है वो x है. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर y plus x. Now students, I have the value of y. I have the value of y in equation number में. Okay, I have already calculated y. Okay, so I will use here. So 1 upon √3 is equal to 3000√3 is equal upon y बोले तो 3000. I have already calculated. Okay, so from here I would calculate what? See, 3000√3 into √3 means 3000 into 3, and I can write it 9000. Okay, 3000 into 3, 9000. No problem at all. Okay, so the value of x is going to be 9000 minus 3000, or I should write it 6000 meter or 6 kilometer. Okay, same thing. Now let it be in meters only. Now students, what we wanted the speed. Now speed of aeroplane
is distance upon time. The distance I have calculated 6000 meter and the time taken is given to in second, so it's going to be in meter per second. So I can write the required answer as 200 meter per second. Okay, so this aeroplane is moving with the speed of 200 meters per second. Clear? चलिए, the next question. On a horizontal plane there is a vertical tower with a flagpole on the top of the tower. ओके, एक प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, दिख रहा है। चलिए, इस पर एक वर्टिकल टावर है, ये मेरा वर्टिकल टावर आ गया। तो लेट मी राइट दिस पॉइंट O, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट as B. Point B is actually the top of this tower. Okay, now there is a vertical tower with a flagpole on the top. अच्छा, इस टावर के टॉप पर एक फ्लैग लग रहा है, ठीक है, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। अभी देखो झंडा भी आएगा, ये झंडा आ गया, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। नाउ दिस BC इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस BC इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ फ्लैग, height of flag. Okay, so at a point 9 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree. ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि 9 मीटर अवे है, कहां से? टावर के फुट से। तो ये OA जो है वही हो गया, ये पॉइंट हो गया जो कि मैंने कितनी डिस्टेंस पर लिया है, ये मैंने लिया है 9 मीटर्स अवे। ओके, तो यहां से एक बार आपने झंडे के टॉप को देखा, मतलब फ्लैग के टॉप को देखा, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। फिर इसी पॉइंट से आप देख रहे हो किसको? बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल या फिर टॉप ऑफ द टावर, एक ही बात है। तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल। आपको ये हाइट निकालनी है टावर की, मतलब H निकालनी है, ठीक है, H तो निकालनी है, साथ साथ आपको ये X भी निकालनी है, ठीक है। तो X हो गई हाइट ऑफ फ्लैगपोल, H हो गई हाइट ऑफ टावर, डिस्टेंस बिटवीन इज गिवन टू यू। तो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व यू हैव द टू ट्रायंगल, वन इज ट्रायंगल OAB एंड अनदर इज ट्रायंगल OAC and you have only two variable H and X. It's your work to solve this complete. You have diagram, it's your time to solve. Okay, I am not gonna solve. सी डायग्राम आपके पास है, आप सॉल्व करें और मुझे सॉल्यूशन भेजें। ओके, व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, आप उस पर सॉल्यूशन भेजें। चलिए, सॉल्व करना आपका काम। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद लेक्चर कंप्लीट। ये आपके प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस आल्सो। सो ये 4 और वो 1, उसका केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट। आपके पास 5 क्वेश्चंस हो गए सॉल्व करने के लिए। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए आपका पार्ट, ठीक है। In the next lecture, what we will do? In the next lecture, we will be solving questions on the angle of depression. Okay, and we will have the questions on combination of angle of elevation and depression. Also, we will solve some very nice questions. Okay, some very conceptual questions. Okay, in which we will prove some results. Okay, based on this height and distance. Okay, so till then, take care. Bye bye. See you in the next lecture. Enjoy.